আসিফি সাহেব দামাত বারাকাতুল মোলা আলিয়া যারা পাগড়ি পাবেন তাদের নাম ঘোষণা করছি। মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, পিতা মোহাম্মদ সোনার মিয়া, গ্রাম উত্তর বড়ডহর। হাফিজ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, পিতা সোনার মিয়া, গ্রাম উত্তর বড়ডহর, সাগরলাল জুড়ি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। 2 নম্বর মোহাম্মদ নাইমুদ্দিন, পিতা মোহাম্মদ হাফিজ মোহাম্মদ নাইমুদ্দিন, পিতা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, গ্রাম চন্দ্রপুর, টেলিভিশন কুলাউড়া। তিন নম্বর হাফিজ মোহাম্মদ আবাদুর রহমান, পিতা মরহুম হাফিজ মোহাম্মদ মুহদ্দিস আলী, গ্রাম শরীফপুর, টেলিভিশন কুলাউড়া। হাফিজ মোহাম্মদ সাল্লাহ আহমদ, পিতা মৌলানা ফজলুর রহমান, গ্রাম সুন্দরপুর, টেলিভিশন কুলাউড়া। देखो भाई ये सीना में जो ना पूरा कुरान है, ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। সম্মানিত এলাকাবাসী, আপনারা নীরব সুন্দর লাগে, কিন্তু আমরা এলাকার একটা ইয়ে আছে, জমিনে অন্য বস্তুনি আলোচনা যায়, আর মাঝে মাঝে কাগজ মেহরবানি করিয়া মেহমান খুশি হইবা, মেহমান খুশি আল্লাহ খুশি হইবা যে আমরা নতুন হয়ে যাই। মেহমান খুশি হইবা আর রোজায় পুরো খবর রাখা আল্লাহর খুশি হইবা, আমরা সুন্দর তরিকায় কথা মেহরবানি মেহরবানি করিয়া আপনারা সুন্দর তরিকায় কথা। কয়েকদিন আগে আপনারা সামনে আমরা পুরস্কার গেছে হজরত মৌলানা হাসান বিন আসজাদ তোশিবাংলা দেওবন্দর, কিন্তু এড়ানোর সময় তার নাম প্রকাশ করা হয়েছে। সেনে আমরা খুব চেষ্টা করছি, গত কঠিন আমি যারা বড়া থাকি রিসিভ হই, আমরা বড়ার যে আগে রিসিভ থাকি, আমরা মাথার পুরোমায় খেলাম তাহলে অত চাঁদে 3 মাসের বিষয় লাগে, আমি কিন্তু চাঁদে পাস দেওয়া হয়েছে, ওরা পাস নাই, ওখানে আনবি না। আল্লাহর মেহরবানি চাঁদ পরিবর্তে আরো হুজুর মুফতি আবুল হাসান সাহেব সায়েন্স ফেস্টিভালে যে হুজুর আমরা সামনে বর্তমানে উপনীত হাজির আছেন, আমরা চান আল্লাহ সাথে নেক আয়াত দাবর করেছে, আমিন হোক। আলহামদুলিল্লাহ সায়েন্স ফেস্টিভালে গতকাল পরশু দিন 2 দিন আমরা এলান করছি, তার সম্বন্ধে এলান করছি। মুফতি আবুল হাসান সাহেব তার নাম প্রকাশ করছি, 12 ইয়ে করছি, কিন্তু আমরা আসাদ আসজাদ মাদানী মাতাদিল্লুল আলীর কথা প্রকাশ করছি না। এটা যদি প্রকাশ করি যে মৃত্যু বলিনে মরিয়া, আর মিশা কথা উলামায়ে কেরাম হলো স্থান নাই, ও কারণে আমি এটা প্রকাশ করাইছি না, এলান করছি না। এলান করলে বাবা আমার আত্মক দুঃখ হইল, টান দিয়ে আমরা দাওয়াত করছি, যার মারফতে এবারে আমরা নাই বা তাই জোহরের নামাজের পরে টাকাত বয়ান দিতে, আর বয়ানের পরে ওর থেকে রোয়ানা হয়েছে না, আমরা দুর্গাদুর্গা আছে। আল্লাহ মেহরবানি তাই কথা কইছে 9টার সময় আইয়া আমরা এখানে পৌঁছে বাড়িয়া, 9টার 15 মিনিট আগে আইয়া করছেন।
যদি আমি হাজির করছি না একটু বিশ্রাম দিতে পুরানগাঁও গিয়া আর একটু খানা খাওয়া গিয়ে জানলে ওখানে খানা খাইয়া পাই না আপনারা খানা হাজির গিয়া এতে আপনারা বসি না বেলা আপনারা তো গিয়া আলহামদুলিল্লাহ আগামী কেউই চাই বাংলাদেশ আই যে আমরা তাদের চাই না নেই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তার নেক হায়াত দান করো আল্লাহ এই যে ইলম আমল হায়াত বরকত দান করো আপনারা যারা উপাত আসুন উজে আসুন মেহরবানি করে আপনারা নিচে বসে আছেন উজে উপাত আসুন আপনারা বক্র সেটা ঠান্ডা দিন আপনারা বক্রই গাড়িয়া আপনারা বক্রই যাবে ডিগ্রমে যেটা লাগবে কেনে বলতো রক্তশন করবো না কিন্তু যেটা রাখতে বলে যার বাইক বেশি যার মেনো বেশি না বইয়া না বইয়া তারা আইটি এরা পান বাজার সা নাকা বইয়া তারা তাতে যদিও পাইনি না আওয়াজ বলবাই সময় পাইনি না মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম বলো গেছই যদিও তারা আওয়াজ সময় পাইনি না কিন্তু আপনারা যেভাবে আদর্শ মাদর করতোই এরপরে কইলারে ডান্ডা হয়ে গেছে আমরা কইলা ডান্ডা হয়ে গেছে এখন যদি আপনারা উপাস থাকে ওদের কষ্ট পাই আমরা পঞ্চাশ কষ্ট লাগে আপনারা উপাস থাকে ওদের কষ্ট পাই আমরা পঞ্চাশ কষ্ট লাগে আপনারা কষ্ট জানি আপনারা উপায় আপনারা কষ্ট জানি আপনারা মেহরবানি করে আপনারা বই দেখাবে আর যদি খালি জায়গা পুরাইয়া বোকা খালি জায়গা পুরাইয়া বোকা যদিও নোটিশ আইয়া এক নোটিশ বইয়া উলামায়ে কেরাম নোটিশ আইয়া বইয়া আজ উপাদন মেহমানের সামনে আইয়া দিয়া দেখা বই খালি জায়গা পুরাইয়া বই আপনারা বই যে বেহস্তর খালি জায়গা আপনারা দিয়া যাইবা সুবহানাল্লাহ মেহরবানি করে আগে খালি জায়গা দিতে খালি জায়গা খালি দিবা বয়ান সব লাভা বয়ান তো হইছে বহুত মেহনত করিয়া গিয়া বহুত বেরিয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করছেন সুদূর ভারত থেকে আগত আজকের ঐতিহ্যবাহী নওরোজা মদিনাতুল উলুম ইসলামী আন্তর্জাতিক মাদ্রাসার 32তম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের সম্মানিত প্রধান অতিথি হযরত আল্লাম হযরত মাওলানা মুফতি আবুল হাসান কাসেমী সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া হযরত কেওনার গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করার জন্য আহলে মসজিদের পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ করছি। সম্মানিত প্রধান অতিথি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अच्छे हैं, मिजाज बखैर हैं, ठीक है सबके सब। उर्दू समझ में आती है ना? हाँ, तर्जमा की जरूरत है? बोलो, तर्जमा की जरूरत नहीं है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह अकबर। ये जो खड़े हैं इनको क्या परेशानी है? আপনারা খোরা উজে তাকি বয়ান রাখবা आगे आ जाओ। উজে বয়ান রাখবা বয়ানের অনুবাদ করা হইতো নি আপনারা চাই বাংলাতে নিশ্চয়ই তাকুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আর বিশেষ করে আপনারা যে খাওয়া হইয়া আসেন কিতাব পেরেশানি আপনার সমস্যা কিটা আপনারা একটু পিছলে দিতা। देखो मेरे भाई, बयान सुनने के लिए आए हैं ना? জি हाँ, पक्का? ये सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हैं, বয়ান শুনने के लिए। बयान सुनने के लिए, ठीक है ना? इंशाल्लाह पक्का। देखो, बयान शुरू करने से पहले मेरी दो शर्त है। कितनी? दो शर्त है। एक शर्त, बयान शुरू करने के बाद कोई यहां से जा नहीं सकता। जिसको जाना है पहले जाओ, जिसको जाना है हाँ, बयान शुरू करने के बाद नहीं जा सकता। पक्का? वादा? हाथ उठा के वादा करो कि बयान जब तक खत्म नहीं होगा, दुआ नहीं होगी, नहीं जाएंगे। पक्का? अल्लाह कबूल फरमा। आमीन। दूसरी बात यह है, दूसरी शर्त, फोटो नहीं खींचना। ये देखो, ये मोबाइल है इसके पास। दूसरी शर्त क्या है?
फोटो नहीं खींचना, ठीक है ना भाई? ये गुनाह है मेरे भाई, खामखा फोटो खींचने की क्या जरूरत है? आप आए हैं, मैं भी आया हूं, हाँ, मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, तो फिर फोटो किसके लिए खींचना है? अशद जरूरत है तो फिर फोटो खींच सकते हैं, लेकिन खामखा फोटो नहीं खींचना, गुनाह है। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामत अल मुसव्विरून, ये हदीस है भाई, ठीक है ना? फोटो नहीं खींचना, ठीक है ना? इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा। देखो कितने खड़े हैं अभी, भाई आपको क्या है, बैठ जाओ ना, आराम से बयान सुनो। आओ भाई, आओ आओ मेरे भाई, आओ, मेहरबानी करके आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठो। अल्लाह मदरसा कहाँ तक है? दौरा हदीस है। अल्लाह बच्चे हैं, मिशकात के बच्चे हैं यहाँ, माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, और जो लड़का है इनका मदरसा कहाँ तक है? मुख्तसर मानी तक है लड़कों के लिए। चलो ठीक है, आओ भाई, बैठो बैठो, खड़ा नहीं होना है, बैठ जाओ, आओ आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई? आवाज नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, देखो कितने समझदार है माशाल्लाह। अल्लाह মাদ্রাসার হুজুর যারা আপনারা মেহরবানি করিয়া মাশাআল্লাহ আতো দড়ি গিয়া বাউকা, আতো দড়ি গিয়া বাউকা। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सब के सब बैठ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ठीक है भाई, तर्जमा की जरूरत तो नहीं है, कुछ बातें ऐसी है जिसका तर्जमा होना चाहिए, आप कर देंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجده وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کو آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجری ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا مجھے سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز صدر جلسہ
मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सामिईन इज़ाम, रब करीम के दरबार में लाखों करोड़ों शुक्र जिसने हमें इस आज़िमुशान जलसा में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई है। इसीलिए दिल की गहराई से कलिमत शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, ये जो जलसा है इसका सबसे बड़ा जरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर दुनिया में ना आते शायद जलसा ना होता। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में ना आते शायद मैं और आप मुसलमान भी ना होते। मोहम्मद मुस्तफ़ा ना होते शायद मदरसा ना होता। मोहम्मद मुस्तफ़ा ना होते शायद मस्जिदें ना होती। मोहम्मद मुस्तफ़ा ना होते शायद मेरे और आपके सिर पे टोपी ना होती। मेरे भाइयों, आज यहाँ जो कुरान और हदीस की बातें होती है ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से है। मेरे भाइयों, मेरे नबी की तो बहुत सारी शान है, इतनी शान है, इतनी शान है, दुनिया का कोई इमाम, कोई खतीब इसको बयान कर नहीं सकता। आज मैं आपके सामने मेरे नबी की वो शान बयान करूंगा इंशाअल्लाह जो अर्श वाले खुदा ने बयान किया है। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगंबर हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप एक इलाका के लिए नहीं है, एक गांव के लिए नहीं है, एक बस्ती के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने जहान है हर जहान के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगंबर हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलम उक़बा के लिए तो रहमत है, आलम जमादात के लिए तो रहमत है, आलम हैवानियात के लिए तो रहमत है, आलम इंसानियात के लिए तो रहमत है, मर्दों के लिए तो रहमत है, फरिश्तों के लिए तो रहमत है, जिन्नतों के लिए तो रहमत है, मजदूरों के लिए तो रहमत है, दुनिया के एक एक जर्रा के लिए आए पैगंबर आप रहमत है। क्यों, किस लिए मेरे भाइयों, क्यों सारे जहानों के लिए मेरे नबी रहमत है? इसलिए कि मेरे नबी को जो किताब दी गई है ये किताब सारे जहानों के लिए है। कुरान हुदल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए हिदायत है। रब कहता है आप रहमतुल लिल आलमीन, आप भी सारे जहानों के लिए नबी है, रहमत है। रब कहता है मैं भी रब्बुल आलमीन हूं, मैं भी सारे जहानों का परवरदिगार हूं। कुरान सारे जहानों के लिए हिदायत है, आप सारे जहानों के लिए रहमत है। मैं परवरदिगार सारे जहानों का पालने वाला हूं। ना कुरान की कोई मिसाल है, ना आपकी कोई मिसाल है, ना मैं परवरदिगार की कोई मिसाल है। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगंबर हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे भाइयों, आप हैरान हो जाएंगे, ये कुरान आसमानी किताब है। क्या है? ठीक है ना? और भी बड़ी किताब है, आसमान से नाजिल हुई है, लेकिन कुरान के नाजिल होने में, दूसरी किताबें नाजिल होने में आसमान जमीन जैसे फर्क है। तौरात आसमान से आई है, लेकिन मेरे भाइयों ये तौरात किताब जब उतरने का वक्त आया, हजरत ईसा से फरमाया मैं आपको किताब देना चाहता हूं, आप इंतजार करें, आप रोजा रखें। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। हजरत मूसा से कहा मैं आपको किताब देना चाहता हूं, आप इंतजार करें, तूर पहाड़ पे आइए, फिर मैं आपको किताब दूंगा। इंजील उतरने का वक्त आया, हजरत ईसा से फरमाया मैं आपको किताब दूंगा, आप इंतजार करें, फिर मैं आपको किताब दूंगा। जबूर उतरने का वक्त आया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया मैं आपको किताब देना चाहता हूं, आप इंतजार करें, अपने माबद में बैठ जाइए, रोजा रखिए, फिर मैं आपको किताब दूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा पर जब कुरान नाजिल होने का वक्त आया तो मेरे नबी को इंतजार करना ना पड़ा, मेरे नबी को रोजा रखने की जरूरत ना आई है, मेरे नबी को तूर पहाड़ पे जाना नहीं पड़ा, बल्कि क्या हुआ, मेरे नबी मक्का में कुरान को भेज दिया। मक्का में मेरे नबी मदीना में आया, कुरान को मदीना में भेज दिया। मेरे नबी पहाड़ पे चढ़ा, कुरान
कुरान को पहाड़ पे भेज दिया, मैं नबी बाजार में आया, कुरान को बाजार में भेज दिया, मैं नबी गलियों में पहुंचा, कुरान को गलियों में भेज दिया, मैं नबी बदर में, कुरान भी बदर में, मैं नबी उहुद में, कुरान भी उहुद में, मैं नबी हुनैन में, कुरान भी हुनैन में, मैं नबी उशैरा में, कुरान भी उशैरा में। मेरे भाई वो हत्ता के मेरे नबी हजरत आयशा के बिस्तर पे, कुरान भी आयशा के बिस्तर पे। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगंबर हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा। कुरान कहता है हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, तू रफीक है, तू शफीक है, तू अजीज है, तू रऊफ है, तू मोहम्मद है, तू अहमद है, तू माही है, तू हाशिर है, तू आकिब है, तू फातिह है, तू यासीन, तू मुजतबा, तू मुर्तजा, तू मुज़म्मिल, तू मुद्दस्सिर, तू दाई इलल्लाह, तू सिराजुल मुनीर, तू हामिद, तू महमूद, तू अजवद, तू अहदब, तू अकहल, तू अहयद, तू अअज़, तू अजल, तू अजमल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खुदावंदी याद खुदावंदी याद आकाश सहना बेइज्जती है वहाँ। मेरे भाइयों, दुनिया में जितने खूबसूरत नाम है, मोस्ट ब्यूटीफुल नेम्स हैज गिवन माय लॉर्ड टू माय डियर प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने खूबसूरत नाम है मेरे रब ने सारे नामों को मेरे नबी को अता कर दिया। यहां तक कि अपने खुद का नाम, जाती नाम, रब कहता है मैं रहीम हूं, और अपने नबी को आप भी रहीम है। मैं रऊफ हूं, रब ने कहा आप भी रऊफ है। इससे पहले रब ने अपना जाती नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, आज अफसोस है, मुसलमान अपने नबी को भूल चुके हैं। मुसलमान नबी की सुन्नत से दूर है। मुसलमान तो दावा करता है कि मैं आशिक रसूल हूं, लेकिन वो मुसलमान नबी की सुन्नत से दूर है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान झूठ बोलते हैं, मुसलमान धोखा देते हैं, मुसलमान झूठ बोलते हैं, मुसलमान रिश्वत लेते हैं, मुसलमान घूस लेते हैं, मुसलमान जिना भी करते हैं। आज के मुसलमान की यह हालत है मेरे भाइयों। आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, मुसलमान मजलूम है, मुसलमान की पिटाई होती है मेरे भाइयों। सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि मुसलमान अपने नबी की सुन्नत से दूर है। मुसलमान अगर अपने नबी की सुन्नत पर अमल करे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देखे। इसीलिए नबी की सुन्नत पे अमल करनी है, करना है नहीं करना है, किसी भी हालत में अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आज मुसलमान को क्या हो गया, मुसलमान को नबी से मोहब्बत है जबान पे, अमल में नहीं है। मुसलमान नबी की तरह खाना खाना पसंद नहीं करता है, मुसलमान नबी की तरह चलना पसंद नहीं करता है, मुसलमान नबी की तरह सोना पसंद नहीं करता है, मुसलमान नबी की तरह बैठना पसंद नहीं करता है। मेरे भाइयों, सहाबा एक एक सुन्नत के लिए नबी की अपनी जान को कुर्बान कर देते थे। हमारे सामने वो तारीख है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी है, कुर्बान हो गए उन सहाबी के लिए। ईरान के बादशाह के दरबार में गए हैं, खाना खाने बैठे हैं तो एक लुकमा गिर जाते हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान उस लुकमा को साफ करके उठाकर खाते हैं। साथी ने कहा, हुज़ैफा तुम ईरान के बादशाह के दरबार में हो, यहां खाने की कोई कमी नहीं है, इसको उठाकर खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने क्या कहा था उस वक्त? हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, आतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूंगा? देखो मेरे भाई, ये सहाबी है, एक सुन्नत के लिए किसी की परवाह नहीं करते थे, बादशाह की परवाह नहीं है, दुनिया की सुपर पावर इसकी कोई परवाह नहीं है, नबी की सुन्नत पे अमल करनी है।
آج مسلمان کو افسوس ہے نبی کا چہرہ بھی بنانا پسند نہیں کرتا ہے. مسلمان کو نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے. یہ مسلمان کا حال ہے. آج مسلمان کی بیٹیاں، مسلمان کی بیٹی میرے بھائیوں اسکول اور کالجوں میں پارک میں جس طرح گھوم رہی ہے، مسلمان کے لڑکا اور لڑکے اس قدر زنا میں مبتلا ہے. اللہ کی قسم ان گلیوں میں کتا اور کتیا بھی اس قدر زنا نہیں کرتی ہے. جب تک نبی کی سنت پہ عمل نہیں ہوگی تب تک مسلمان کی چین اور شانتی نہیں ہے. ہر جگہ پہ مسلمان کی پٹائی ہوگی میرے بھائیوں. آپ کو پتہ نہیں ہے ہندوستان میں کتنی جگہ ہے جہاں مسلمان پر ظلم ہوتا ہے. صرف اور صرف یہ وجہ ہے مسلمان اپنی نبی کی سنت سے دور ہے، دین سے دور ہے. آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ گجرات کے مسلمان کی پٹائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسلمان اپنی نبی کی سنت سے دور ہو چکے تھے، مسلمان نبی کے دین سے دور ہو گئے تھے، اسی لیے مسلمان کی پٹائی ہوتی ہے. ورنہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. ایسی کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہے. میرے بھائیوں نبی کی سنت نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ پکا وعدہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دوسری بات میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے. کیا ہے؟ ایک بات کو یاد رکھنا، یہ جو مدرسہ ہے امت مسلمہ کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے مدرسہ. کیا کہا؟ مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں سب سے بڑی قیمتی چیز، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی نعمت مدرسہ ہے. آتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں یا ترجمہ کی ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے مدرسہ. یہ مدرسہ اگر نہیں رہے گا تو میں اور آپ مسلمان بھی نہیں رہیں گے. یہ مدرسہ نہیں رہے گا قرآن کی تعلیم نہیں رہے گی. یہ مدرسہ نہیں رہے گا حدیث کی تعلیم نہیں رہے گی. یہ مدرسہ نہیں رہے گا علماء نہیں رہے گا. یہ مدرسہ نہیں رہے گا اللہ کی قسم دنیا نہیں رہے گی. اور میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا کہ میرا کوئی مالک ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا کہ تیرا کوئی خالق ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا تیرا کوئی مشکل کشا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا تیرا کوئی مالک بھی ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا تیرا کوئی حاجت روا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا میرا آقا محمد مصطفیٰ ہے. یہ مدرسہ نے مجھے بتایا قرآن کیا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا حدیث کیا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا میرا رب کون ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا کہ قبر کیا ہے، قبر کی زندگی کیسی ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا جنت کیسی ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا جہنم کیسی ہے. یہ مدرسہ نے مجھے بتایا تجھے قرآن پڑھنا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا کہ تو مسلمان ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا یہ زندگی کیسی گزرنی ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا تو یہاں کیوں آیا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا مجھے یہاں کیا کرنا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا مجھے کہاں جانا ہے. میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے جس نے مجھے بتایا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا جائز اور ناجائز کیا ہے. مدرسہ نے مجھے بتایا یہ دنیا میں اپنی زندگی کیسی گزرنی ہے. میرے بھائیوں یہ مدرسہ نہ ہوگا رب العالمین اس دنیا کو تباہ اور برباد کر دیں گے. اس لیے مدرسہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص کر کے دیوبندی مدرسہ. کون سا مدرسہ؟ دیوبندی مدرسہ. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی صحیح تعلیم ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی وہ دیوبندی مدرسہ ہے. آج پوری دنیا میں قرآن کا صحیح معنی جاننے والا، حدیث کی صحیح تشریح جاننے والا صرف اور صرف دیوبندی ہے. صرف اور صرف دیوبندی ہے. معلوم ہے آپ کو کیوں؟ آپ حیران ہو جائیں گے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 آدمی ہیں. کتنے؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 آدمی ہیں. ان میں جو پہلے آدمی ہے، پہلی اینٹ رکھنے والے کا نام رشید احمد گنگوہی ہے. پہلی اینٹ رکھنے والے کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہے. میرے بھائیوں
دوسری عید رکھنے والے کا نام حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہے، تیسری عید رکھنے والے کا نام حافظ رفیع الدین ہے، چوتھی عید رکھنے والے کا نام محدث احمد علی سہارنپوری ہے، پانچویں عید رکھنے والے کا نام عابد حسین ہے۔ یہ جو پہلی عید رکھنے والا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ رشید نام سے کیوں پہلی عید رکھی ہے؟ ہم قرآن اور حدیث کو تلاش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ الیس منکم رجل الرشید۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے گاؤں میں دین کی محنت کی ہے، جب اپنے گاؤں چھوڑ کے جا رہے تھے، آخر میں انہوں نے کہا تھا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی رشید نہیں ہے؟ پتہ چلا رشید کا معنی ہے فتنوں کے دروازہ بند کرنے والا۔ رشید کا معنی کیا ہے؟ فتنوں کے دروازہ بند کرنے والا۔ اللہ کی قسم پہلی عید دیوبند میں رکھنے والے کا نام رشید ہے۔ پتہ چلا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کا فتنہ ہوگا اس فتنہ کا دروازہ بند کرنے والا دیوبندی ہوگا، اور یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کا فتنہ ہے، شیعہ فتنہ ہے مقابلہ میں دیوبندی ہے، قادیانی فتنہ ہے مقابلہ میں دیوبندی ہے، روافضی فتنہ ہے مقابلہ میں دیوبندی ہے، خوارج ہے مقابلہ میں دیوبندی ہے، اہل خبیث ہے مقابلہ میں دیوبندی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کا فتنہ ہوگا اس کا مقابلہ کرنے والا دیوبندی ہوگا۔ دیکھو کوئی قادیانی کبھی بھی شیعہ کا خلاف نہیں بولتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ کبھی قادیانی کے خلاف نہیں بولتا، اہل خبیث کبھی قادیانی کے خلاف نہیں بولتا۔ یہ صرف دیوبندی کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ہاں یاد رکھیو مسلمان، یہ صرف رشید احمد گنگوہی نام کی برکت ہے، یہ رشید نام کی برکت ہے۔ جہاں کہیں بھی جس قسم کا فتنہ ہوگا اس کا مقابلہ کرنے والا دیوبندی ہوگا۔ دوسری عید رکھنے والے کا نام حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہے، دوسری عید رکھنے والے کا نام قاسم نانوتوی ہے۔ میرے بھائیو ہم حدیث اٹھاتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مال اور دولت عطا نہیں کی ہے، صرف علوم نبوت عطا کی ہے۔ پتہ چلا دیوبند دوسری عید رکھنے والے کا نام قاسم نانوتوی ہے، پوری دنیا میں علوم نبوت کو تقسیم کرنے والا ہے، اور یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج پوری دنیا میں جتنے شیخ الحدیث ہے اللہ کی قسم دیوبندی ہے، پوری دنیا میں جتنے محدثین ہے دیوبندی ہے، پوری دنیا میں جتنے مفسرین ہے دیوبندی ہے، پوری دنیا میں جتنے خطیب ہے دیوبندی ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن اور حدیث کا صحیح معنی معلوم جاننے والا، قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح جاننے والا وہ دیوبندی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے کچھ سال پہلے سعودی عربیہ سے 4-5 بڑے شیخ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہم سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد کہنے لگے کہ شیخ پوری دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہے، جتنے دیش ہے، کنٹری ہے، ہر جگہ ہمیں جانا ہوا پوری دنیا میں، لیکن جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا، قرآن اور حدیث کا صحیح معنی جاننے والا عالم ملا ہے، ہم نے ان سے پوچھا تمہیں علم کہاں سے ملا ہے؟ اس نے دو جواب دیا ہے، یا تو یہ کہا کہ میں دیوبند میں پڑھنے والا ہوں، یا تو یہ کہا میں دیوبند میں پڑھنے والے کے پاس پڑھنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی سچا پکا ماہر عالم ہمیں نہیں ملا ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہوا دیوبند کو دیکھنے کے لیے، اسی لیے ہم آئے ہیں دارالعلوم کی زیارت میں۔ یہ قاسم نام کی برکت ہے۔ کس نام کی برکت ہے؟
कासिम नाम की बरकत है मेरे भाइयों। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी दीन उलूम नबूवत की तालीम होती है, ये कासिम नाम की बरकत से होती है। आपको मैं बताऊं, ये जो मौलाना कासिम नानतवी है, उनका पीर, उनका शेख हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह है। तालिब इल्मी का जमाना था, हजरत मौलाना कासिम अपने पीर के पास बयात है, 5-6 साल छोटा बच्चा है, अपने शेख के पास खत नहीं लिखता है, चिट्ठी नहीं लिखती है। तो कुछ दिन बाद उनसे मुलाकात होती है। पीर सैयद ताइफ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा, बेटा कासिम तुम खत नहीं लिखते हो, क्या बात है, मुलाकात के लिए नहीं आते हो? तो बच्चा है कासिम नानतवी ने कहा कि शेख मैं क्या बताऊं आपको, मैं जब जिक्र करने लगता हूं तो मुझे बोझ महसूस होता है, मुझे लगता है ये इल्म मुझसे नहीं होगा। मेरे भाई मियां और आप होते तो कहते कि तू गुनाह करता है, गुनाह छोड़ दे। लेकिन सैयद ताइफा देवबंदी पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा, ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कासिम तुम्हारे लिए बशरत है। तो उसने कहा क्यों? तो देखो अल्लाह के नबी पर जब वही आती थी उनको बोझ महसूस होता था। अल्लाह के नबी जब वही आती थी, अगर ऊंट पे होता तो ऊंट सो जाते थे, किसी पे रान पे होता तो ऐसा लगता कि रान टूट जाएगा। तो तुम अगर जिक्र करते हो तुम्हें बोझ महसूस होता है, समझ लो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उलूम नबूवत तुम्हारे दिलों में आ रहा है। जैसा देवबंदी है, देवबंदी पीर भी वैसा ही है। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का एक खलीफा है, वो किसी वजह से बैतुल्लाह में जाना पड़ा, वहां जाके 2 रकात नमाज पढ़ी है। आती है ना बात, समझ में आती है ना, या तर्जमा की जरूरत है? हाजी साहब का खलीफा क्या है? हाजी साहब का खलीफा बैतुल्लाह में जाता है, वहां 2 रकात नमाज पढ़ती है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनके दिल में यह ख्याल आया और अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बा ये जो मैं 2 रकात नमाज पढ़ी है, इसका जो सवाब है, जो अजर है मुझे मिलने वाला है, मुझे दिखा दे। आती है ना बात समझ में? तो ये खलीफा जो है मुराकबा में बैठ गया और कश में जो है एक खूबसूरत औरत देखी है, जिसको हूर कहते हैं। 2 रकात नमाज के बदले में उनको क्या मिली? खूबसूरत हूर, खूबसूरत औरत मिली है। लेकिन वो आंखों से नाबिनी है, अंधी है। क्या है? खूबसूरत हूर तो है, लेकिन आंखों से क्या है? अंधी है, नाबिनी है। ठीक है ना? तो ये खलीफा जो है परेशान हो गया कि 2 रकात नमाज के बदले में मुझे जो तोहफा मिली है, जो अजर सवाब मिला है, खूबसूरत हूर तो है लेकिन आंखों से नाबिनी है, अंधी है। अंधी समझते हैं ना? अच्छा, तो बाद में जब अपने पीर सैयद ताइफ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से मुलाकात हुई है तो उनसे कहा, शेख मैं बैतुल्लाह में 2 रकात नमाज पढ़ी है और खुदा से दुआ मांगी, रब्बा इस 2 रकात के बदले में मुझे जो अजर सवाब मिला है मुझे दिखा दे। तो कशफ में मैं आंख बंद की, मुझे खूबसूरत लड़की तो देखी है लेकिन वो आंखों से नाबिनी है। क्यों? देखो शेख देवबंदी पीर का जवाब सुनो मेरे भाइयों। हाजी साहब ने कहा, तूने जो 2 रकात नमाज पढ़ी है आंख बंद करके तो नहीं पढ़ी है। नहीं समझे? बोलो, तूने जो 2 रकात नमाज पढ़ी है आंख बंद करके तो नहीं पढ़ी है। तो उसने कहा हाँ मैंने आंख बंद करके पढ़ी है। तो पीर ने कहा क्यों? तो उसने कहा ख्यालात बहुत ज्यादा आते थे, ख्यालात बहुत ज्यादा आते थे, इसलिए आंख बंद करके नमाज पढ़ी ताकि ख्यालात ना आए। लेकिन मेरे भाइयों देवबंदी पीर ने कहा, याद रखियो मुसलमान, ये अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा, देखो वो नमाज जो ख्यालात वाली है लेकिन सुन्नत के मुताबिक है, वो उस नमाज से आला है
جو خیالات والی نہیں ہے لیکن سنت کے خلاف ہے. سمجھا؟ جو نماز خیالات والی نہیں لیکن سنت کے مطابق ہے وہ اعلیٰ ہے اس نماز سے جو خیالات والی نہیں ہے لیکن خلاف سنت ہے. آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. کیا ہے؟ خلاف سنت ہے. آنکھ کھول کے نماز پڑھنی ہے. خیالات آ بھی جائے کوئی دقت نہیں ہے لیکن سنت کے مطابق تو ہے. یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے. یہ دیوبندی عقیدہ ہے. میرے بھائیو آگے اس نے کہا دنیا کے مسلمانوں یاد رکھیو یہ جو بیت الخلا ہے ٹوائلٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ بیت الخلا میں سنت کے مطابق جانا بیت اللہ میں خلاف سنت جانے سے اعلیٰ. یہ دیوبندی عقیدہ ہے. بیت اللہ میں سنت کے مطابق جانا بیت الخلا میں لیٹرین ٹوائلٹ میں سنت کے مطابق جانا بیت اللہ کے گھر میں خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ بیت الخلا لیٹرین میں سنت کے مطابق جاؤ گے تو ثواب ملے گا لیکن بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں خلاف سنت جاؤ گے تو گناہ ملے گا. گناہ نہیں ملے گا کیا؟ تو یہ دیوبندی عقیدہ ہے. دیوبندی عقیدہ کے ساتھ رہنا ہے. اور دیوبندی عقیدہ دیوبندی مدرسہ میں ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اسی لیے مدرسہ کی ضرورت پوری کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ علماء دیوبند کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. علماء دیوبند پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کے محافظ ہے. علماء دیوبند ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ علماء دیوبند کے پاس اتنی عقل ہے کہ دنیا کے کسی علماء کے اور عوام کے پاس اتنی عقل نہیں ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے علم لدنی ہے. کیا ہے؟ ہاں یاد رکھیو مسلمان. ایک دو واقعہ میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے. علماء دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے. کیا ہے؟ بولو. علماء دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے. علماء دنیا میں سب سے زیادہ آپ چاہے ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے ایڈوکیٹ بن گئے جسٹس بن گئے لیکن علماء کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. عالم جس جگہ میں ہوگا چاہے چھوٹی سی مسجد کا امام بھی ہو وہ اس علاقہ کا سب سے بڑا عاقل ہوگا. وہ اس علاقہ کا سب سے بڑا عاقل ہوگا. اس بات کو یاد رکھنا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نام تو سنا ہوگا. کسی ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گئے ہیں دلائل کے ساتھ بیان کیا. عقیدہ کا مسئلہ تھا دلائل کے ساتھ بیان کیا. تو ان کے ساتھ ایک عالم تھا. اس نے کہا شیخ آج کا جو بیان ہے بڑا سخت ہو گیا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. حکیم الامت نے کہا دیکھو اگر لوگوں کو میرا بیان سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بھی الحمدللہ. تو لوگ پریشان ہو گئے کیسی بات ہے بیان سمجھ میں آ گیا تو بھی الحمدللہ نہیں آیا تو بھی الحمدللہ. کیوں؟ تو حکیم الامت نے کہا دیکھو اگر لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ اور اگر سمجھ میں نہیں آئی تو لوگوں کو اتنا تو معلوم ہو گیا علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حکیم الامت نے فرمایا دیکھو جو عوام اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھائے گا علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ عوام کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور جو یہ سوچتا ہے میرے پاس موبائل ہے میرے پاس موبائل ہے میں موبائل میں تلاش کر لوں گا ہر مسئلہ یہ گمراہ ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. موبائل سب سے بڑا مفتی بن گیا ہے. موبائل مفتی کیا ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا موبائل مفتی. جو چیز چاہیے بس موبائل میں تلاش کرتے ہیں موبائل میں تلاش کرتے ہیں. ارے بھائی 4 لاکھ ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ میں. کتنے؟ صرف اسلام کے نام پہ. دارالعلوم دیوبند میں 10 سال پڑھنے کے بعد 4 سال میں فتویٰ میں تھا دارالفتہ میں 4 سال.
हमने रिसर्च किया, इंटरनेट के अंदर 4 लाख वेबसाइट है इस्लाम के नाम पे, फुला दारुल इफ्ता, फुला दारुल इफ्ता, फुला दारुल इफ्ता, 4 लाख वेबसाइट, उनमें 2 लाख वेबसाइट काफिरों के हैं, गैर मुस्लिम यहूदियों ने वेबसाइट में इस्लाम के नाम पे वेबसाइट खोल रखा है, वहां कुरान की फुला आयात, वहां फुला हदीस लगा के मसला दे रखा है। आपको क्या पता इसके बारे में? मेरे भाइयों, मोबाइल के पास नहीं जाना, दीन का काम उलमा के साथ करना है। पक्का? दीन का जो भी काम होगा उलमा के साथ करना है। मदरसा बनाना है उलमा के साथ मिलकर बनाना है, मसाजिद बनाना है उलमा से मिलकर बनाना है, तबलीग का काम करना है उलमा के साथ मिलकर करना है। ठीक है ना? यहां भी शैतान आ गया है, तबलीग में क्या लग गया? शैतान लग गया है। किसके साथ रहना है? उलमा के साथ रहना है। किसके साथ रहना है? पक्का? किसके साथ रहना है? उलमा के साथ रहना है। उलमा दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद है। क्या है? इसीलिए उलमा के साथ रहना है। हकीमुल उम्मत अशरफ अली नव्वरल्लाहु मरकदाहु, उनके पास एक हिंदू पंडित आया है। आती है ना बात समझ में? हिंदू पंडित ने कहा, अशरफ अली थानवी, मुसलमान कहते हैं कुरान कलामुल्लाह है। क्या है? ठीक है ना? लेकिन अहलु सुन्नत और जमात मुसलमान का अकीदा है अल्लाह का कोई मुंह नहीं है। ठीक है ना? अल्लाह का क्या नहीं है? माउथ। ही हैज नो माउथ। अल्लाह का क्या नहीं है? मुंह नहीं है। ठीक है ना? बोलो अल्लाह का क्या नहीं है? बोलो अल्लाह का क्या नहीं है? हमारा जैसा मुंह नहीं है अल्लाह का। ठीक है ना? लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, ये भी तो ठीक है। तो हिंदू पंडित ने कहा, तुम कहते हो कुरान अल्लाह का कलाम है, ये भी कहते हो अल्लाह का हमारा जैसा मुंह नहीं है, तो कलाम कैसे बना है? सवाल ठीक है ना? परफेक्ट क्वेश्चन है ना? जवाब तो देना पड़ेगा। क्या बोलते? जवाब देना पड़ेगा ना? तुम क्या जवाब दोगे मुझे बोलो? कोई है जवाब तुम्हारे पास? नहीं है। देखो, ये आलिम के पास होता है। किसके पास होता है? अशरफ अली नव्वरल्लाहु मरकदाहु, अल्लाह उनकी कब्र में करोड़ों सवाब अता फरमाए। देखो उन्होंने क्या कहा, हिंदू पंडित से कहा, पंडित जी तुम बात करते हो किससे? तुम बात करते हो किससे? उसने कहा मुंह से। ठीक है ना? थानवी रहिमहुल्लाह ने कहा, तुम्हारा मुंह किससे बात करता है? उसका मुंह किधर है? बोलो, तुम मुंह से बात करते हो, इस मुंह का मुंह किधर है? तो पंडित ने कहा उसका कोई मुंह नहीं है, बात करने के लिए मुंह को मुंह की जरूरत नहीं है। बोलो ना, तर्जुमा समझाओ इनको। समझ? आप समझे? बोलो क्या कहा? नहीं समझे? आपने समझा? बोलो। উনি বলতেছেন যে কথা যে বলতেছো হিন্দু পণ্ডিত রে, তুমি মুখ দিয়ে কথা বলতেছো না মুখ ছাড়া কথা বলতেছো? তুমি বলতেছে মুখ দিয়ে কথা বলতেছি, তাইলে তুমি কেন এরকম করতেছো? नो नो, नहीं समझा। मुझे बांग्ला थोड़ा समझ में आता है। तुम बोलो भाई, नजरों का है? अरे ये तो क्या है? पक्का क्या? बोलो। हाँ, उसका मुंह किधर है? ठीक है ना? तुम बात करते हो मुंह से, ये मुंह किससे बात करता है? उसका मुंह किधर है? तो उसने कहा नहीं, उसकी मुंह की जरूरत नहीं है। थानवी ने कहा तो जिस अल्लाह ने इस मुंह को बनाया उसको बात करने के मुंह की क्या जरूरत है? नहीं समझे? नहीं समझे भाई, मुझे दुख होता है। नहीं समझा? हम लोग कह नहीं पाते, समझती है सब। देखो, हिंदू पंडित से कहा तुम बात करते हो, यू आर टॉकिंग विद योर माउथ, ओके? लेकिन योर माउथ, व्हाई टॉकिंग? तुम्हारा जो मुंह है ये बात किससे करता है? इसका मुंह किधर है? व्हेयर हिज माउथ? मुंह का माउथ किधर है? तो उसने कहा नहीं, उसका कोई माउथ नहीं है। मुंह का कोई मुंह है क्या? ये जो माउथ है इसका कोई माउथ है क्या? नहीं है ना?
تو थानवी रहमहुल्लाह ने कहा जिस अल्लाह ने इस मुंह को बनाया उसको बात करने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है। देखो अकल है, क्या है? अकल है। इसलिए उलमाए देवबंद के साथ रहना है, ठीक है ना इंशाअल्लाह। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह देवबंदी उलमा है, बड़ा उलमा है। नाम क्या है? शाह अताउल्लाह बुखारी रहमहुल्लाह। तो उनके पास एक शिया आया है। शिया जानते हैं ना? बोलो शिया काफिर है, बोलो शिया काफिर है, शिया काफिर है, कादियानी काफिर है, बोलो कादियानी, 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 शिया काफिर। पक्का? धोखा में ना पड़ना मेरे भाइयों, ये शिया काफिर है। क्या है? हाँ, याद रखियो। ये शिया कहते हैं कि हजरत अबू बकर काफिर है, नाउजुबिल्लाह। इन हरामियों का कहना है कि हजरत उमर काफिर है, नाउजुबिल्लाह। ये कहते हैं हजरत आयशा काफिर है, ये कहते हैं हजरत हफ्सा काफिर है, हम कहते हैं तुम काफिर है। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, उनकी किताब मैंने पढ़ी है, उस किताब में लिखा हुआ है कितना बड़ा हरामी है, समझ लो कितना बड़ा हरामी है। कहते हैं कोई शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के साथ जब जिस्मानी ताल्लुक करेगा, समझते हैं ना? कोई शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के साथ जब जिस्मानी ताल्लुक करेगा, अपने खास आज़ा में अबू बकर, उमर, अली, अबू बकर, उमर, हफ्सा, आयशा का नाम लिखेगा तो दुगना सवाब मिलेगा, नाउजुबिल्लाह। काफिर है, शिया, शिया काफिर है। एक शिया हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी के पास आया है। याद रखो मुसलमान, इन शियों के पास एक मसला है, निकाह मुअक्कत। सुनो भाई, सुनो मेरी तरफ देखो। निकाह मुअक्कत 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए किसी औरत से शादी करना कुछ पैसा देके, ये शियों के पास हलाल है। क्या है? नहीं समझे? 1 घंटा के लिए शादी करना शिया के पास क्या है? हलाल है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी के पास हराम है। इसको निकाह मुअक्कत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, तो वो शिया शाह अताउल्लाह बुखारी के पास आया है। देखो कितना बड़ा कमीना है। आकर कहते हैं कि अताउल्लाह शाह बुखारी, मुर्गा का मजहब क्या है? देखो क्या पूछता है, मुर्गा का मजहब क्या है? कोई जवाब है आपके पास? लेकिन आलिम अगर होगा ना, उसके पास जवाब होता है। देखो अताउल्लाह शाह बुखारी देवबंदी आलिम है, रब्बुल आलमीन ने उनके दिमाग में इल्म लदूनी अता किया है। क्या अता किया है? उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? क़यामत तक ये जवाब हमारे सामने है। उन्होंने कहा देखो, मुर्गा को अगर पिंजरा में बंद कर दोगे तो सुन्नी है, अगर छोड़ दोगे तो शिया है। नहीं समझा? पिंजरा में बंद है तो अपनी बीवी के साथ रहेगा, छोड़ दोगे तो एक बार इस मुर्गी के पास, एक बार उस मुर्गी के पास, तो शिया का तो यही काम है। अल्लाहु अकबर। ये उलमाए देवबंद है। क्या है? माशाल्लाह। आप हंसते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई है। अज़हकल्लाहु सिन्नक। कोई मुसलमान हंसे तो उसको ये दुआ दे, अल्लाह आपको हमेशा हंसता हुआ रखे। एक बार हजरत कासिमुल उलूम अल खैरात कासिम नानुतवी रहमहुल्लाह के पास एक हिंदू पंडित आया है। बोलो किसके साथ रहना है? उलमाए देवबंद के साथ रहना है। किसके साथ रहना है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हिंदू पंडित आए हैं, कासिमुल उलूम अल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद उनके पास आए हैं। आकर कहने लगे, मौलाना ये आपको क्या हो गया? मुसलमान जब कोई जानवर ज़बाह करता है, करते हैं ना, फिर मर जाते हैं ना, उसको खाते हैं, हलाल कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को मार दे तो कहते हैं कि हराम है।
ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم خود ذبح کر کے مارتے ہیں تو حلال ہے، اللہ نے مار دیا تو حرام ہے، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا۔ اس جانور کا مالک کون ہے؟ تو وہ مار دے تو حلال ہونا چاہیے، تم مارو گے تو حرام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ سوال تو درست ہے نا؟ ہندو پنڈت کا سوال کیا ہے؟ درست ہے، ٹھیک ہے، کہ تم خود ذبح کر کے مارتے ہو اور کہتے ہو حلال ہے، اللہ نے مار دیا کہتے ہو حرام ہے، بھئی یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ مار دیا تو حلال ہونا چاہیے، تم نے مارا تو حرام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے۔ قاسم العلوم الخیرات نے فرمایا ہندو پنڈت آپ کے گھر پہ نل کا ہے، نل نہیں سمجھتے جو پانی پیتے ہیں، تو اس نے کہا ہے، تو کہا کس نے بنایا؟ پنڈت نے کہا ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو قاسم العلوم الخیرات نے کہا تم نے اپنے ہاتھ سے نل بنایا، اس کا پانی حلال ہے، خدا نے تیرے جسم میں ایک نل لگا دیا، تو کہتے اس کا پانی حرام ہے۔ تو ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ علماء دیوبند ہے، کیا ہے؟ یہ سچی کہانی ہے، سچا واقعہ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ قاسم العلوم الخیرات کے پاس ہندو پنڈت آیا ہے، آ کر کہنے لگے میرا ایک سوال ہے۔ تو قاسم العلوم الخیرات نے کہا کیا سوال ہے؟ تو ہندو پنڈت نے کہا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو کیا ہوا؟ اس کو غسل کراتے ہیں، نیا کپڑا پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر سارے مل کے دعا کرتے ہیں، پھر اس کو دفناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مر گیا تو بس ختم۔ تو دیکھو ہندو کیا کرتے ہیں؟ مر گیا تو اس کو جلا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ میرے بھائیوں دیکھو، دیوبندی عالم، دیوبندی عقل حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے کہا دیکھو پوری دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ مسلمان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اور ہر قیمتی چیز کو دفنایا جاتا ہے۔ مسلمان کے دلوں میں ایمان ہونے کی وجہ سے وہ قیمتی ہو جاتا ہے، دامی ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہر دامی چیز کو دفن کر کے رکھتے ہیں۔ تم کافر ہو، تم ہندو ہو، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ کچرا جیسا ہے اور کچرا کو جلایا جاتا ہے۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ علماء دیوبند کے ساتھ رہنا ہے۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ علماء دیوبند کے ساتھ۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولو، علماء دیوبند کے ساتھ رہنا ہے۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ یہ جو شیعہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی اللہ کے رسول سے بھی بڑا ہے، نعوذ باللہ۔ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت علی اس کا مرتبہ اللہ کے رسول سے بھی بڑا ہے، نعوذ باللہ۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمہ اللہ ایک دن ٹرین سے سفر کر رہے، کون؟ عطا اللہ شاہ بخاری، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پاس ایک شیعہ بیٹھا ہے، ٹرین میں سیٹ ملتی ہے نا، ان کے پاس ایک شیعہ، وہ بھی عالم تھا، بڑا تگڑا سا ہے، پگڑی والا ہے، جبہ پہنا ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے پاس شیخ آپ کا نام کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس شیعہ نے کہا میرا نام کلب علی ہے۔ کیا کہا؟ کلب ان کا معنی ہے کتا، اور علی علی ہے، تو دونوں کا معنی ہوا علی کا کتا، سمجھے نا؟ کیوں؟ ان کے پاس علی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اپنا نام کیا رکھا؟ کلب علی، علی کا کتا۔ دیکھو تو عطا اللہ شاہ بخاری نام سنتے ہی سمجھ گیا شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا یہ کوئی نام ہے؟ علی کا کتا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو علی اللہ کا پیارا ہے، کیا ہے؟ تو میں علی کا کتا ہوں تو اس وجہ سے اللہ مجھے پیار کرے گا اور میری ضرورت پوری کر دے گا، یہ کلب علی نے کہا۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تو علی کا کتا ہے، اللہ کا اپنا کتا راستہ میں پھر رہا ہے، اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کا اپنا کتا ہے نا راستہ میں، ان کو تو کھانا نہیں ملتا ہے،
تو تجھے کہاں سے کھانا ملے گا؟ تو اللہ کا نہیں علی کا ہے. کس کا ہے تو؟ علی کا ہے. اللہ کا کتا راستہ میں گھوم رہا, ان کو کھانا نہیں ملتا ہے, تو علی کا کتا ہے, تیری ضرورت کیسی پوری ہوگی؟ تو بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا. تو اس نے کہا کہ شیخ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے برباد کر دیا, آپ کا نام کیا ہے؟ تو دیکھو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا میرا نام خنزیر اللہ ہے. تو وہ بیچارہ کہنے لگا کہ یہ کوئی نام ہے خنزیر اللہ. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کیوں نہیں, تو علی کا کتا ہے, اللہ اگر تیری ضرورت پوری کرے گا, میں تو خنزیر اللہ, اللہ کا خنزیر ہوں, اللہ میری ضرورت بھی پوری کرے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یہ علماء دیوبند ہے. کیا ہے؟ علماء دیوبند ہے. میرے بھائیوں, عقیدہ درست ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے ایمان. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عقیدہ. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں, محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہیں, یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن ایک نہیں 2 اور 3 مانتا ہوں, یہ عقیدہ ہے. کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کو نبی مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا, مسلمان رہے گا؟ ایمان رہے گا؟ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے. اللہ کو مانتا ہے, ایک ماننا پڑے گا. محمد مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے, آخری نبی ماننا پڑے گا, ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا. اچھا مجھے بولو آپ, اللہ کے رسول قبر پہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بولو زندہ ہے یا مردہ ہے؟ حیات النبی زندہ باد. بولو حیات النبی, حیات النبی, حیات النبی. دیکھو اس پہ بیان ہونا چاہیے. آج پوری دنیا میں ایک فتنہ ہے, یہ لا مذہبی غیر مقلدین اہل حدیث کہتے ہیں, حالانکہ اہل خبیث ہے. کیا ہے؟ اہل خبیث ہے. کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول قبر پہ مردہ ہے, نعوذ باللہ. ایک مسئلہ. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ, اللہ کے رسول نور ہے یا بشر ہے؟ اللہ کے رسول نور ہے یا بشر ہے؟ بولو نور والے کتنے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. اچھا, اور بشر کتنے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. بشر تو سمجھتے ہیں نا مٹی سے ہے. اچھا میرے بھائی سنو, کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ دشمنی ہے؟ مجھ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ سے میری کی دشمنی ہے. میں مسئلہ بیان کروں گا دلیل کے ساتھ, آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے, مجھے گالی نہیں دینا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے رسول نور نہیں ہے, بشر ہے, لیکن ہمارا جیسا بشر نہیں ہے. سنو, یہ جو دنیا کا انسان ہے دنیا کے مٹی سے ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لینا, دنیا کا بشر انسان ہے دنیا کی مٹی سے پیدا ہے. آدم سے عیسیٰ جنت کی مٹی سے پیدا ہے. محمد مصطفیٰ جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا ہے. جھگڑا ختم ہو جائے گا. جو نور کہتے ہیں نا وہ نبی کو عزت دیتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ نور ہے, تو غلط ہے. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی ہمارا جیسا نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہمارا جیسا نہیں ہے. دنیا کا انسان دنیا کی مٹی سے پیدا ہے, آدم سے عیسیٰ جنت کی مٹی سے پیدا ہے, محمد مصطفیٰ جنت الفردوس والی مٹی سے پیدا ہے. دلیل لے لو مجھ سے. یہ جو ہم بیان کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں تو پسینہ آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ پسینہ آتے ہیں نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ گام آتے ہیں. اس میں بدبو یا خوشبو ہے؟ بدبو آتی ہے. صحیح بخاری کو اٹھاؤ, اللہ کے رسول کے جسم سے خوشبو آتی تھی. یہ جو جسم ہے دنیا کی مٹی سے ہے, محمد مصطفیٰ کے جسم جنت الفردوس والی ہے, اس لیے اس میں بدبو ہے, اس میں خوشبو ہے. دنیا کے انسان دنیا کی مٹی سے ہے,
आदम से ईसा तक जन्नत वाली मिट्टी से है, मोहम्मद मुस्तफा जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी से है। हम बात करते हैं तो जबान से थूक आते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि नहीं कोरोना वायरस हो जाएगा, ठीक है ना, मास्क पहन लो, ठीक है ना। क्यों? ये दुनिया की मिट्टी है। आप बुखारी को उठाओ, हदीस से उठाओ, हजरत अली की आंख में बीमारी आ गई, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब लगा दिया, शिफा मिल गया। क्यों? जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी है। हजरत अबू बकर गार में है रसूलुल्लाह के साथ, सांप ने काटा, जहर की वजह से पूरा चेहरा काला हो गया, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब लगा दिया, जहर पानी बन गया। क्यों? नबी का, मोहम्मद मुस्तफा का जिस्म जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी का है, ठीक है ना। सबसे बड़ी दलील ले लो, अभी आगे कुर्बानी का महीना आएगा, ठीक है ना, कुर्बानी करते हैं ना सबके सब, अल्लाह सबको कुर्बानी करने की तौफीक दे दे। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी का वाकया क्या है? हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम ने ख्वाब में देखा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ठीक है ना। अपना बेटा इस्माइल से कहा, मैं तो ख्वाब में देखता हूं मैं तुझे ज़बाह करता हूं। बेटा ने कहा, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, जो हुक्म हो रहा है उस पर अमल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो वाज है, लेकिन यहां दलील क्या है समझो। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को पकड़ा, ठीक है ना, आंख बंद की है, पट्टी लगा दी, बेटा है, ठीक है ना, आखिरी उम्र में बच्चा पैदा हुआ, मोहब्बत ज्यादा है, तो अपने बेटे को ज़बाह करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो आंखों में पट्टी लगाई है और बाल पकड़ा इस तरह, और जो छुरी चला दी, ज़बाह कर डाला, ज़बाह कर डाला, आंख खोली तो देखा इस्माइल खड़ा है, दुम्बा ज़बाह हुआ पड़ा है। यहां तक बयान है, आगे मुझसे सुनो। दुनिया में जितने मुफस्सिरीन है सबने कहा ये दुम्बा जन्नत से आया है। कहां से आया है? क्यों आया जन्नत से? इसलिए आया, इस्माइल जन्नत वाली मिट्टी से है और उसके बदले में ज़बाह होना है और बदला बराबर होता है। इस्माइल जन्नत वाली मिट्टी से है, इसलिए दुम्बा भी जन्नत वाली मिट्टी से है। लोग तो सिर्फ कुर्बानी का बयान सुनता है, यहां हकीकत क्या है? ये दुम्बा जन्नत वाली क्यों है? इस्माइल जन्नत वाली है। इस्माइल क्या है? हाँ, आदम से ईसा तक जितने अंबिया है सबके सब जन्नत वाली मिट्टी से है और उसके बदले में दुम्बा को ज़बाह करना था, इसलिए जन्नत से लाया गया है। वरना बदला कैसे होगा? 100 के बराबर 100 होना चाहिए। आपने मुझे 100 टाका दिया, मुझे आपको 100 टाका देना है, ठीक है ना, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं है। इस्माइल जन्नत वाली मिट्टी से है, इसीलिए दुम्बा भी जन्नत वाली मिट्टी से है। पक्का? दुनिया के इंसान दुनिया की मिट्टी से पैदा है, आदम से ईसा जन्नत वाली मिट्टी से पैदा है, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी से है। अच्छा, अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाने की तौफीक दे, जन्नत में ले जाए। जन्नत में जाएंगे ना? अच्छा मुझे बताओ, जन्नत में कोई मौत है? समझने की कोशिश करो मुसलमान, जन्नत में मौत है? जन्नत में मौत है तो मोहम्मद मुस्तफा जन्नत वाली मिट्टी से है ना, जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी से है ना, उसमें भी मौत नहीं है, इसलिए तो नबी जिंदा है। मोहम्मद मुस्तफा जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी से है, वहां कोई मौत नहीं है, उस मिट्टी में मौत नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी से है, उस जिस्म में भी मौत नहीं है, इसलिए तो कहते हैं कि हयातुन नबी है। सबसे बड़ी दलील, दुनिया का कोई इंसान अगर मर जाए, ठीक है ना, उसकी बीवी की दूसरी जगह शादी होती है नहीं होती है? ठीक है ना। मुझे बताओ, हजरत आयशा की शादी हुई थी, उम्मे सलमा की शादी हुई है, नबी की हफ्सा बीबी की शादी हुई है? क्यों नहीं हुई है? नबी की इंतकाल नहीं हो, मौत नहीं हुई तो शादी भी नहीं टूटा, निकाह भी नहीं टूटा, इसलिए बीबी की दूसरी जगह शादी भी जायज नहीं है। मुसलमान को क्या हो गया? नहीं समझते हैं। नबी की मौत नहीं हुई है, इसलिए बीवी भी निकाह से नहीं बाहर नहीं निकली है, इसलिए दूसरा उसको शादी नहीं कर सकता है।
अब कुरान से दलील ले लो। कुरान कहता है इन्नका मैयितुन व इन्नहुम मैयितून, नबी आपको मरना है, आपकी उम्मत को भी मरना है। पता चला दोनों की मौत एक जैसी नहीं है। आपकी मौत और उम्मत की मौत की नहीं क्या नहीं है, एक नहीं है। उम्मत मर जाए तो बीवी निकाह से बाहर हो जाती है, आपकी मौत होगी तो आपकी बीवी निकाह से बाहर नहीं होगी। क्यों? आपकी मौत जाहिरन है, बातिनन नहीं है। नबी की मौत जाहिरन है, बातिनन नहीं है। देखो मैं आपको समझाऊं, ये आदमी है, ठीक है ना, होता है ना। मैंने कहा ये मेरा भाई है, क्या कहा, ठीक है ना। अच्छा, अपनी बीवी का भाई होता है ना, उसको भी तो भाई कहते हैं, जिसको साला कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी ने कहा ये मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, क्या दोनों भाई बराबर है? एक अपना भाई है, दूसरा बीवी का भाई है, मतलब साला है, क्या है, साला है। लेकिन क्या कहा, ये मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। तो पता चला दोनों भाई भाई नहीं है, दोनों भाई भाई नहीं है। तो अल्लाह ने तो यही कहा नबी आपको मरना है, उम्मत को भी मरना है। पता चला आपकी मौत और उम्मत की मौत बराबर नहीं है। और नबी जन्नतुल फिरदौस वाली है, उसमें मौत ही नहीं है, उसमें क्या नहीं है। अब दलील ले लो, ये कुरान है। हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल, बुखारी को उठाओ, फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद सो गए, 1 घंटा बाद उठे और जमात से नमाज पढ़ाई है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप सो गए थे, आपने नमाज पढ़ा दी, वजू नहीं की। अल्लाह के रसूल ने कहा तनाम आईनी वला यनाम कल्बी, मेरी आंख सोती है, दिल जागता है। क्यों? जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी है, उसमें मौत भी नहीं है, नींद भी नहीं है। उसमें क्या नहीं है, मौत भी नहीं है, नींद भी नहीं है। जब नींद नहीं है, वजू भी नहीं टूटा, वजू नहीं टूटता है, ठीक है ना। देखो अल्लाह के रसूल पे जाहिरन मौत आई है, बातनन नहीं है। क्या कहा? जाहिरन मौत आई है, बातनन मौत आई नहीं है। अहलु सुन्नत वल जमात का अकीदा है, समझो अच्छी तरह। देखो दुनिया में भी बहुत सारी चीज ऐसी है, आपको मैं समझाऊं, जिसका जाहिरन एक चेहरा है, बातनन दूसरा चेहरा है, ठीक है। समझ लो, यहां पास में एक घर है, ठीक है, उसमें आग लग गई, क्या हुआ? अब उसमें गर्म पानी डालोगे, क्या डालोगे? तो आग बुझेगी और बढ़ेगी? नहीं बुझेगी, गर्म पानी, लेकिन आग बुझेगी, क्या हो जाएगी कि ना। पानी गर्म हो कोई बात नहीं, लेकिन आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। पानी देने से आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ये गर्म पानी जाहिरन गर्म है, लेकिन बातनन ठंडा है, इसलिए तो बुझ जाती है। पानी गर्म जाहिरन है, लेकिन बातनन क्या है? ठंडा है। इसलिए आग में पानी गर्म डाल दो, आग खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां पेट्रोल डाल दो, आग बढ़ेगी। पेट्रोल तो ठंडा है, जाहिरन ठंडा है, बातनन गर्म है। नहीं समझे? ये पेट्रोल जाहिरन ठंडा है, बातनन क्या है? समझो मुसलमान, पेट्रोल जाहिरन क्या है? ठंडा है, बातनन क्या है? गर्म है। गर्म पानी जाहिरन गर्म है, बातनन ठंडा है। तो अल्लाह के रसूल पे मौत जाहिरन आई है, बातनन नहीं आई है। बातनन जिंदा है, बातनन क्या है? इसलिए कब्र पे है, लेकिन जिंदा है, क्या है? जिंदा है। देखो सिर्फ नबी नहीं, उम्मत भी कब्र पे जिंदा है, उम्मत भी कब्र पे, काफिर भी कब्र पे जिंदा है। कैसे? आपको ये मसला पता नहीं, अज़ाबुल कब्र हक़्क़ुन, कब्र पे अज़ाब होता है नहीं होता है? तो अगर मुर्दा है तो अज़ाब देने की क्या मतलब है? ठीक है ना, मुर्दा को अज़ाब देने में क्या फायदा है? लेकिन फर्क है, क्या है? कब्र पे अंबिया जिंदा है, शहीद भी जिंदा है, ठीक है ना। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जिसकी मौत हुई है, शहीद हुए हैं, इसको तुम ये ना कहो कि ये मर गए हैं, ठीक है ना, जिंदा है। क्या है? बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून,
ये जिंदा है, ठीक है ना। अच्छा, मोमिन भी कब्र पे जिंदा है, मोमिन भी, काफिर भी कब्र पे जिंदा है, लेकिन उनमें फर्क है। क्या है? डिफरेंस है। मैं आपको समझाऊं, देखो ध्यान से तवज्जो। ये दाढ़ी जिंदा है या मुर्दा है? बोलो, जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है ना। कैसे पता चला? लंबी होती है, ठीक है ना, लेकिन इसको काटोगे दर्द नहीं होता। बोलो, दर्द होता है? अरे मैं बोलो तो काटने से दर्द होता है, खून निकलता है, नहीं है ना, लेकिन जिंदा है। क्या है? इसमें हयात है। क्या है? हयात है ना, तभी तो लंबी होती है। लेकिन काटने से दर्द नहीं होता, तो पता चला हयात है लेकिन कम है। क्या है? ठीक है ना, हयात है लेकिन कम है। थोड़ा ऊपर हो जाओ, ये गाल है, यहां काटोगे दर्द होता है नहीं होता है? खून निकलता है, तो पता चला ये भी जिंदा है लेकिन इससे ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें हयात यहां से ज्यादा है, नहीं समझे? यहां हयात है कम है, यहां हयात है ज्यादा है। अच्छा, और ऊपर हो जाओ, लेकिन यहां इस तरह करोगे दर्द होता है? बोलो, दर्द होता है? नहीं होता है। ऐसा करने से दर्द होता है? नहीं होता है। काटने से दर्द होता है, हाथ लगाने से दर्द नहीं होता, ठीक है ना। और थोड़ा ऊपर हो जाओ, आंख, आंख के अंदर हाथ लगाओ दर्द होता है। तो पता चला आंख में और ज्यादा हयात है। आंख में क्या है? और ज्यादा हयात है। इसमें हयात है कम है, इसमें और ज्यादा है, आंख के अंदर और ज्यादा है, नहीं समझे? इसमें हयात है कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, और आंख के अंदर और ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, और ऊपर चला जाओ, दिमाग में क्या है? हाथ लगाओगे तो मौत हो जाएगी, ठीक है ना। तो पता चला दिमाग में और ज्यादा हयात है। तो सारे अंबिया कब्र में दिमाग जैसा फूल जिंदा है, शहीद आंखों की तरह कब्र पे जिंदा है, मोमिन गाल की तरह कब्र पे जिंदा है, काफिर दाढ़ी की तरह कब्र पे जिंदा है। सबके सब जिंदा है लेकिन फर्क है। क्या है? इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कब्र पे जिंदा है। अल्लाह के रसूल कब्र पे क्या है? जिंदा है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है, अकीदा के साथ रहना है, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। ये मदरसा है, मदरसा की जरूरत पूरी करेंगे, ठीक है ना, इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह। मदरसा की जरूरत पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। ये मदरसा के लिए अगर मैं कुछ मांगूंगा आप देंगे ना, इंशाअल्लाह? पक्का देंगे इंशाअल्लाह? हाथ दो। मदरसा के लिए मांगेंगे, देंगे इंशाअल्लाह? हाथ नीचा करो। मैं एक वाक़या आपको सुनाऊं। राबिया बसरिया का नाम सुना है आपने? हाँ, राबिया बसरिया के पास 4-5 उलमा आए हैं दुआ करवाने के लिए। तवज्जो, तो रात का वक्त था, मगरिब के बाद। तो खादिमा ने कहा, राबिया घर पे कोई खाना नहीं है, घर पे कोई खाना नहीं है। तो थोड़ी देर बाद दरवाजा में किसी ने खटखटाया। तो राबिया ने खादिमा से कहा, देखो कौन है। तो खादिमा ने कहा, कोई खाना लेके आया है। तो राबिया ने कहा, गिनो कितनी रोटी है। तो खादिमा ने कहा, 9 रोटी है। कितने? तो राबिया ने कहा, ये मेरी नहीं है, वापस कर दो, रिटर्न कर दो, किसी और को देने के लिए कह दो, ये मेरी नहीं है। इधर उलमा बैठे हैं, इशा का वक्त हो चुका है, घर पे कोई खाना नहीं है। तो खादिमा ने कहा, हजरत घर पे कोई खाना नहीं है। 1 घंटा बाद, इशा के बाद कोई और आया, दरवाजा में खटखटाया। राबिया ने कहा, देखो कौन है। खादिमा ने कहा, कोई है, खाना लेके आया है। राबिया ने कहा, पूछो कितनी रोटी है। खादिमा ने कहा, 9 रोटी है। राबिया ने कहा, ये मेरी नहीं है, वापस कर दो, किसी और की है। तो खादिमा बेचारी परेशान हो गई है। इधर उलमा बैठे हैं, इनको खाना खिलाना है, सोने का वक्त हो चुका है, अब क्या करें। काफी देर बाद कोई और आया है, दरवाजा में खटखटाया है। राबिया ने कहा, देखो कौन है। खादिमा ने कहा, कोई खाना लेके आया है। राबिया ने कहा, पूछो कितनी रोटी है। खादिमा ने कहा, 9 रोटी है। राबिया ने कहा, मेरी नहीं है, वापस कर दो, किसी और की है। तो खादिमा बेचारी परेशान हो गई है। राबिया कहने लगी है, हजरत आप बार बार क्यों खाना वापस करती है? उलमा बैठे हैं, सोने का वक्त हो चुका है, इनको खाना खिलाना है, घर पे खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो आप बार बार क्यों वापस करती है? राबिया ने कहा, देखो सुबह को मेरे पास 1 रोटी थी,
ایک سائل آیا تھا, اللہ کے نام سے مانگا, میں نے اس کو پوری روٹی دے دی ہے, اور میرے رب نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جس نے میری راہ میں ایک خرچ کرے گا میں اس کو 10 واپس کر دوں گا. میں صبح کو 1 روٹی دی ہے, مجھے 10 روٹی ملنی چاہیے, 9 کیوں ہے, میری نہیں ہے. دیکھو عورت ذات ہے, یقین کتنے ہے میرے بھائیو. آج ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ کی قسم, یہ قرآن کی آیات ہے, اللہ کی راہ میں 1 ٹاکا خرچ کرو گے کم سے کم 10 ملے گا. 10,000 دو گے 1,00,000 ملے گا, 1,000 دو گے 10,000 ملے گا. اللہ کی قسم یہ قرآن کی آیات ہے. تو خادمہ نے فوراً پاؤں پکڑی ہے اور رونے لگی, کہنے لگی رابعہ 10 روٹی آئی تھی, میں 1 روٹی اپنے لیے رکھ لی تھی. رابعہ نے کہا 10 ہے, کہا تو پھر لے آؤ, یہ ہمارے لیے ہے. یہ یقین ہے میرے بھائیوں. مدرسہ میں دینے سے پہلے یقین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب مدرسہ کے لیے دینا ہے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. مجھے صرف 2 آدمی چاہیے تو 10,000 ٹاکا مدرسہ میں دے گا. بولو کون ہے؟ اور اس کو مل جائے گا, دنیا میں ملے گا, آخرت میں ملے گا. بولو 10,000 ٹاکا دو گے. دیکھو یہ بلڈنگ ہے, اس کا کام ہو رہا ہے, فاؤنڈیشن ہے 3 تالا. ہاں بھائی کام ہونا ہے اللہ کے لیے. 10,000 بولو بھائی, 2 آدمی چاہیے, زیادہ نہیں, صرف 2 آدمی چاہیے. 10,000 ابھی نقد نہیں ہے, بعد میں دیں گے, 15 دن بعد, 1 مہینہ بعد, جو موقع مل جائے گا دیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی, بھائی اس کو بند کر دو, بند کرو اس کو.